Well, uh, last time we have seen Sambhaji, Chhatrapati Sambhaji's relation with the different power, and during his struggle with the Mughal Emperor Aurangzeb, how he was captured at Sangameshwar and later on tortured and killed by on the order of Aurangzeb. Now, after this, Aurangzeb was very ambitious imperialist emperor. He finished off Shraddha. Are you there? Are you from Marathi medium? I think you are from Hindi medium. I think Shraddha. Shraddha, can you hear me? Yes, sir. You are from Hindi medium, ना? Yes, sir. हाँ, ओके। तो ये जो संभाजी छत्रपति संभाजी को जब औरंगजेब ने पकड़कर उनकी हत्या करवा दी, तो उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा संकट था मराठा राज्य के ऊपर। औरंगजेब बहुत बड़ी सेना लेकर महाराष्ट्र में आया था। बीजापुर और गोलकोंडा दो सल्तनत को उसने नष्ट कर दिया। उसके बाद में मराठों का राजा पकड़ा गया और उसको बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में औरंगजेब जब छत्रपति संभाजी को पकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया, तो वो अपने आसन से उठा और उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसको लगा कि अभी तो दो सल्तनत जो थी, शिया सल्तनत, औरंगजेब सुन्नी था, आदिल शाही और कुतुब शाही उसने नष्ट कर दी और मराठों का जो राजा है वो उसके हाथ में आ गया। अब तो सारी दक्कन उसकी हो गई। हिंदुस्तान में पूरा अफगानिस्तान से लेकर डीप इनटू द साउथ अभी मुगलों का राज्य होगा। ये उसको लगा, उसका सपना पूरा हो गया। और मराठों के दृष्टिकोण से ये बहुत एक परीक्षा की घड़ी थी। और लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में मराठे खरे उतरे। जिस समय उनका छत्रपति पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई, मराठों की मुगलों की बहुत बड़ी सेना मराठों के राज्य में थी और एक के बाद एक किले मुगल जीतते जीतते जा रहे थे। अब तो ऐसे लगने लगा था कि मराठों का राज्य जो छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया था वो शायद समाप्त होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी ओवर नाउ। बट द वे मराठास रिस्पॉन्डेड टू दिस चैलेंज was phenomenal. आपने सेकंड सेमेस्टर में अर्नोल्ड टोयनबी के बारे में हमने पढ़ाई की है, और अर्नोल्ड टोयनबी ये कहता है, व्हाट ही सेज इज दैट whether the society will progress, whether the culture will progress, whether the civilization will progress, it is generally dependent on the response given to the challenges. And the response given by the Marathas to this challenge is phenomenal. It's one of the most brilliant chapter in history that the Marathas, when they were about to lose everything, they fought back. And they fought back in such a way that Aurangzeb, who was just on the verge of making Maratha Empire, Maratha kingdom extinct, himself was finally died as a broken-hearted man in Maharashtra after spending nearly 25 years fighting against the Marathas. So this phase from the death of Sambhaji, from the killing of Sambhaji, to the death of Aurangzeb in 1707. Sambhaji was killed in 1689 and Aurangzeb dies in 1707. So this around 18 years of period during which Marathas resisted the Mughal forces and they were almost brought to the knees. The Marathas who were in despair earlier with the killing of Sambhaji had seems to gradually gain an upper hand. So this phase of 18 years of constant struggle and warfare is known as Maratha War of Independence. Because Marathas were not fighting to expand their kingdom, but they were fighting to preserve their independence. Because the killing of Sambhaji, the brutal killing, the torturous killing of Sambhaji, and the insult that was shown to his dead body, it was cut down into the pieces and thrown at different places. His head was
shown in different Mughal camp mounted on a spear. ये भाले के ऊपर उनका सर रख के जो मुगलों के कैंप में फैलाया गया, उनको बहुत तकलीफ देके मारा गया, और उनके शरीर के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ मृत्यु के बाद में, ये एक बहुत इंसल्टिंग था मराठों के लिए, एंड दैट हैज यूनिफाइड मराठास। तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसके आमतौर पर दो भाग पड़ते हैं। पहला भाग होता है 1689 से लेकर 1700 तक। ये 11 साल का जो पीरियड था, उस पीरियड में मराठों का नेतृत्व किया राजा राम ने, जो कि संभाजी के सौतेले भाई थे, छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे। और 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो गई, तो 1700 से लेकर 1707 तक अगला 7 साल का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में मराठों का नेतृत्व किया ताराबाई ने, जो कि राजा राम की पत्नी थी। तो आज हम लोग जो संघर्ष राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने किया मुगलों के खिलाफ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर छत्रपति राजाराम। एंड नाउ लेट अस talk about a little bit about Rajaram. Rajaram was born in 1670, and in 1680, when Rajaram was only 10 years old, Chhatrapati Shivaji dies. And we have seen this when we were discussing about Sambhaji, that there were certain ministers in the ministry of छत्रपति शिवाजी जिनकी इच्छा थी कि संभाजी छत्रपति ना बने, राजा राम बने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। राजा राम का राज्याभिषेक तो कर दिया गया, बट संभाजी ने सारी बाजी पलट दी। People supported Sambhaji as well because Sambhaji was a grown-up man and Rajaram was just a child, 10 years old child. But as Rajaram and his mother Soirabai was considered as a threat to Sambhaji, Sambhaji put them in prison. उनको जेल में डाल दिया गया। बाद में सोयराबाई ने तो उनकी उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेके काफी कंट्रोवर्सीज है। कुछ लोग कहते हैं कि जब संभाजी को उन्होंने जहर देकर मारने की कोशिश की और जब ये घटना बाहर आ गई, तो उनको काफी इस बात का शी फेल्ट, इट इज वेरी बैड ऑन हर पार्ट एंड शी हरसेल्फ कंज्यूम पॉइजन एंड डाइड। अलग अलग बात है। खैर, सोयराबाई की तो मृत्यु हो गई, लेकिन राजाराम को संभाजी ने कैद में रखा। कैद में मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसको टॉर्चर किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए अपराधी की तरह। उनके ऊपर नजर रखी जाती थी, कोई उनको हाथ में लेके फिर दोबारा विद्रोह ना कर दे। लेकिन संभाजी ने उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान अच्छे से रखा, वो आराम से रहे, इस बात का भी ध्यान रखा। 1689 में जब संभाजी को पकड़कर औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी, उस समय रायगढ़ में राजाराम जो कि कैद में थे, और संभाजी की पत्नी थी येसुबाई, और येसुबाई का भी पुत्र था जिसका नाम शिवाजी था, और जो बाद में इतिहास में शाहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असल में शाहू नाम उसको औरंगजेब ने दिया था। राजाराम 1680 में 10 साल के थे। अभी 1689 की बात है, वो 19 ईयर्स के हो गए थे। इसका मतलब मैच्योर्ड थे, बहुत ज्यादा छोटे भी बच्चे भी नहीं थे। येसुबाई ने लेकिन इस समय शी हैज शोन एन एग्जाम्पलरी फोर्टिट्यूड एंड विजडम। उन्होंने कहा कि अभी ये समय है अपने राज्य को बचाने का। तो जिस समय छत्रपति संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया था, उसी समय येसुबाई ने अपने जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग बुलाई, और उस समय ये नहीं कहा कि मेरा छोटा बेटा है और उसको गद्दी पे बिठा के मैं राजकारभार करूंगी, बल्कि उसने ये कहा कि अभी ये बहुत कठिन समय है, राज्य को बचाना बहुत जरूरी है। तो राजाराम जो कि अभी केपेबल है, 19 ईयर्स के है, जो कि नेतृत्व दे सकते हैं मराठों को, उनको कैद से आजाद किया जाए और उनको छत्रपति बनाया जाए। तो उनके इस बात से काफी मराठा जो नोबल थे, जो मंत्री थे, जो सरदार थे, उनको बड़ा उनके प्रति सम्मान लगने लगा कि ये जो महिला है, इसको कोई सत्ता अपने हाथ में होना चाहिए, मेरा बेटा छत्रपति हो। ये इस तरीके का स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये तो मराठा राज्य के बारे में सोचती है। और सबने वहां पर शपथ ली कि हम लोग राजाराम के प्रति, या फिर
शिवाजी सेकंड, जो कि संभाजी का पुत्र था, उसके प्रति वफादार रहेंगे और मराठा राज्य की सेवा करेंगे। का राज्याभिषेक कर दिया गया और साथ साथ संभाजी ने क्या किया था, जो राजाराम के जो समर्थक थे जिन्होंने संभाजी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, उन सबको जेल में डाल दिया था। उन सबको जेल से छुड़ा दिया गया, राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया गया, बाकी नोबल्स को छुड़ा दिया गया। और जब ये सारी प्रक्रिया रायगढ़ में हो रही थी, उसी समय संभाजी की औरंगजेब के आज्ञा से, औरंगजेब के आदेश से उनकी हत्या कर दी गई, उनको मौत के घाट उतारा गया। और जुल्फिकार खान नाम का एक मुगल सेनापति अपनी बड़ी सेना लेकर रायगढ़ के ऊपर, जो कि मराठों की राजधानी थी, उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। येसुबाई ने दोबारा अपने मंत्रियों के साथ में, राजाराम के साथ में सल्ला मसलत की। शी हैड मीटिंग विद दिस पीपल एंड शी सेड कि हम सब लोग अगर यहाँ रहेंगे और रायगढ़ के ऊपर इतनी बड़ी सेना लेकर आक्रमण हो रहा है, अभी रायगढ़ को घेर लिया गया है, रायगढ़ को घेरा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम रह गए और हम सारे के सारे अगर पकड़े गए, शिवाजी का सारा के सारा परिवार, संभाजी का सारा के सारा परिवार, येसुबाई संभाजी की पत्नी, उसका बेटा, शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम और उसकी पत्नियां, ये सारे के सारे अगर पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी, मराठा राज्य शायद नष्ट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अपने छोटे पुत्र के साथ में यहाँ राजधानी में रहती हूँ रायगढ़ में, और राजाराम अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ से बाहर जाए, मराठा सेनापति भी यहाँ से निकल जाए और अपनी सेना के साथ में महाराष्ट्र में जहां जहां पर भी मुगल फैले हुए हैं उनके साथ में लड़ाई शुरू कर दे, ताकि मुगल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र से दूर दराज जो जिंजी का किला है मद्रास के पास में, चेन्नई के पास में, जिसको छत्रपति शिवाजी ने जीत रखा था, और महाराष्ट्र से लेकर जिंजी तक बीच बीच में कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पर मराठों के किले थे। तो अगर महाराष्ट्र से जिंजी की तरफ देर वॉज अ चेन ऑफ फोर्ट, सो राजा राम अगर हो सके तो जिंजी की तरफ चले जाए, क्योंकि फिर मुगलों की जो शक्ति है दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाए, दोनों तरफ डिवाइडेड हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुगल औरंगजेब जो था, ही अंडरस्टूड दैट द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द मराठास आर इन देयर फोर्ट, सो ही वाज बेंट अपॉन conquering one fort after another fort in Maharashtra। and next मराठों का जो छत्रपति है वो अभी जिंजी में है, दक्षिण में है, तो वहां पर भी उसको सेना भेजनी पड़ेगी, तो मुगलों की शक्ति जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, और मराठों को उनके खिलाफ लड़ना पॉसिबल होगा, स्वाभाविक होगा। इससे येसुबाई और मराठा ये मैसेज भी देना चाहते थे औरंगजेब को कि एक छत्रपति को आपने पकड़ लिया है, उसकी हत्या भी कर दी है, लेकिन अभी भी मराठे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। दे कैन फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदरलैंड। नाउ दिस अपील ऑफ येसुबाई हैज टच्ड द हार्ट ऑफ द मराठास, and now on the advice of येसुबाई and other Maratha noble, Rajaram he slipped out of रायगढ़। रायगढ़ से वो निकल गए, फिर प्रतापगढ़ गए, उनकी पत्नियों को उन्होंने विशालगढ़ पे रखा। विशालगढ़ बहुत ऊंचाई पे किला था, उसको जीतना काफी कठिन है। बाकी के भी जो अधिकारी थे, मराठा अधिकारी, मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य, इनको बाद में राजाराम ने हुकूमत पन्हा नाम का टाइटल दिया। और रामचंद्र पंत अमात्य की किताब के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जब हमने व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ मराठा हिस्ट्री, दैट इज दिस आज्ञापत्र। दिस आज्ञापत्र इज रिटन बाय द सेम पर्सन, रामचंद्र पंत अमात्य, and Ramchandra Panta Amatya was one among the important noble who gave a lot of support to Rajaram during this fight of the Marathas against Aurangzeb. So Ramchandra Panta Amatya, प्रहलाद नीरज जी, शंकर जी महाल और सचिव, दे लेफ्ट रायगढ़। रायगढ़ उन्होंने छोड़ दिया, एंड फ्रॉम अलग अलग जगहों से अपनी सेनाओं के साथ में उन्होंने मुगलों के ऊपर अपने आक्रमण शुरू रखे। मराठों का इस समय भी अच्छा स्पाइस नेटवर्क था, और मुगलों की जो मूवमेंट होते थे, मुगलों की सेना का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, उसके बारे में उनको पता चल जाता था। जुल्फिकार खान रायगढ़ को घेर के बैठा था अपनी सेना के साथ में। उसी समय औरंगजेब ने ही स्टार्टेड एन ऑल आउट अटैक ऑन द मराठा टेरिटरी।
तो सालेर का किला, त्रिंबक का किला, राजगढ़, रोहिड़ा, थाना, माहुली, ये सारे किले औरंगजेब ने जीत लिए मराठों से। उत्तर कोंकण में भी मुगलों ने जीत लिया, उत्तर कोंकण को भी। उस समय धीरे धीरे ये दो मराठा सेनापति ने काफी नाम कमाया, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। तो जहां पर भी मुगलों की सेना इनको मिलती थी या जहां पर भी ये संभव होता था, ये गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मुगलों के ऊपर आक्रमण करते थे और फिर छुप जाते थे। जुल्फिकार खान, जो कि रायगढ़ को जिसने घेर रखा था, रायगढ़ जीतने में समय लग रहा था, इसलिए औरंगजेब ने कुछ सेना जुल्फिकार खान की मदद के लिए भेजी। उन दोनों उन मुगल सेना उस मुगल सेना के ऊपर संताजी और धनाजी ने आक्रमण करके उनको हरा दिया। दे डिड नॉट अलाउ दोज रेनफोर्समेंट टू रीच संताजी। संताजी तो बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ही इफेक्टिव कैवेलरी कमांडर था। कोरेगांव में जब औरंगजेब का कैंप था, उस कैंप के ऊपर ही अचानक संताजी ने आक्रमण कर दिया। और जिस तंबू में जो शाही शामियाना होता था, उसके ऊपर सोने का कलश लगा होता था। औरंगजेब उस टेंट में रहता था। उस टेंट के जो रस्सियां होती थी, वो रस्सियां ही संताजी ने काट दी और वो टेंट पूरा के पूरा नीचे गिर गया। और उससे लगा कि शायद औरंगजेब ही मर गया होगा, औरंगजेब ही उस तंबू में दबकर उसकी मृत्यु हो गई होगी। और वो जो कलश था उसको काट कर संताजी लेके गए और उन्होंने उसको बाद में राजाराम, छत्रपति राजाराम को प्रेजेंट किया। लेकिन औरंगजेब का लक उस समय अच्छा था। ही वॉज स्लीपिंग इन अनदर टेंट। उस रात को वो किसी और टेंट में रुक गया था और उसके कारण उसकी जान बच गई। लेकिन ये जो संताजी का डेयरिंग अटैक जो था कोरेगांव में, दैट हैज क्रिएटेड टेरर इन द मुगल कैंप। फिर प्रतापगढ़ के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया। राजाराम उस समय प्रतापगढ़ पे थे। फिर प्रतापगढ़ से निकलकर राजाराम पन्हाड़ा चले गए। पन्हाड़ा पर जो शेख निजाम थे, जिन्होंने छत्रपति संभाजी को पकड़ा था, उन्होंने पन्हाड़ा के ऊपर आक्रमण किया, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द मराठाज। मराठों ने उसको डिफीट कर दिया। और जुल्फिकार खान, जो अभी भी रायगढ़ को घेरे हुए बैठा था अपनी सेना के साथ में, उसके ऊपर संताजी ने बाहर से आक्रमण कर दिया और 5 जो शाही एलिफेंट थे उसको पकड़कर बाद में उसने राजाराम को प्रेजेंट किए। तो ये जो घोरपड़े बंधु थे, इनकी जो ब्रेवरी जो थी उस समय, उससे राजाराम काफी प्रभावित हुए, काफी प्रसन्न हुए। और उन्होंने ये जो घोरपड़े बंधु थे तीनों, इन्हों को अलग अलग टाइटल दिए। उदाहरण के तौर पर संताजी को मामलकत मदार, मदार मतलब सपोर्ट ऑफ द एम्पायर, सपोर्ट ऑफ द किंगडम, मामलकत मतलब किंगडम। मालोजी को अमीर उल उमराव का किताब दिया गया और बहिर जी को हिंदू राव घोरपड़े का किताब दिया गया। रायगढ़ जो था वो जीतने के लिए काफी कठिन था, बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। लेकिन कितने समय तक युद्ध चल सकेगा, कितने समय तक येसुबाई अपने सिपाहियों के साथ में लड़ाई कर पाएगी और मुगलों को रेजिस्ट कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और लास्ट में फिर ऐसे लगने लगा कि एक ना एक दिन तो मुगल इसको जीत ही लेंगे, और मुगल जीतेंगे तो फिर वो बहुत हिंसा करेंगे। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम कोई ऑनरेबल टर्म करें, ऑनरेबल वार्तालाप करे और रायगढ़ को मुगलों के स्वाधीन कर दे। और इस विचार से फिर येसुबाई ने, जो जुल्फिकार खान थे, उसके साथ में निगोसिएशन किया, अपने आदमी को भेजा। और जब जुल्फिकार खान ने कुरान की कसम खाकर ये वचन दिया कि आपके जीवित को और आपके अब्रू को, योर ऑनर विल बी प्रोटेक्टेड एंड देयर विल बी नो थ्रेट टू योर लाइफ नाइदर टू योर सन। एंड ये प्रॉमिस के बाद में फिर येसुबाई ने रायगढ़ जो है जुल्फिकार खान के स्वाधीन कर दिया। रायगढ़ कैसे मुगलों ने जीता, इस बात को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी है। जीएस सरदेसाई लिखते हैं कि रायगढ़ पे सूर्याजी पिसाळ नाम का एक मराठा अधिकारी था। और इस सूर्याजी पिसाळ के साथ में जुल्फिकार खान ने, मुगलों ने अपने अपने अपना वार्तालाप शुरू किया, गुप्त वार्तालाप, कम्युनिकेशन शुरू किया। और सूर्याजी पिसाळ जो था, ही वॉज इंटरेस्टेड ऑफ बिकमिंग अ देशमुख ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन। वाई पर्टिकुलर रीजन, वाई वाई राज्य की देशमुखी उसको चाहिए थी। देशमुखी का जो अधिकार होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्शन का, और उस समय इट वाज कंसीडर एज वेरी प्रेस्टिजियस, पीपल यूज्ड टू डाई, फाइट फॉर दैट बिकमिंग देशमुख।
So this Suryaji Pisar was promised to be made Deshmukh of Vai, and he secretly shown the way to the Mughal to enter into Raigad. And that is how finally Yesubai decided that as we are going to lose this fort, it's better to surrender now. लेकिन ये जो जयसिंह राव पवार एक मराठों के इतिहास के ऊपर इन्होंने काफी लिखान किया है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है। सूर्याजी पिसाल रायगढ़ को मुगलों ने जब जीता उससे पहले से ही मुगलों की सेवा में थे, और उन्होंने कुछ बातें मुगलों को जरूर बताई थी जिसके कारण रायगढ़ हार गया, रायगढ़ को जीतना संभव हो पाया। लेकिन बाद में सूर्याजी पिसाल को वाई की देशमुखी दी गई, और उसका उसमें उस लड़ाई में उसका जो पार्ट था बहुत कम था, लेकिन बाद में जाके वो बोस्टिंग करने लगा कि मेरे कारण ही रायगढ़ हारा, मेरे कारण ही मुगल रायगढ़ जीत पाए वगैरह वगैरह, और उसके कारण उसको कुछ मुगलों ने बेनिफिट भी दिए। बाद में रामचंद्र पंत अमात्य ने उसको काफी प्रोसिक्यूट किया, अपनी सेना भेजकर। जब मराठे धीरे धीरे प्रबल होने लगे तो अपनी सेना भेजकर उसको काफी तंग किया मराठों ने। बाद में वो औरंगजेब के प्रेशर में आके उसने हिंदू धर्म का त्याग करके वो मुस्लिम भी हो गया। Well, nevertheless, that is one of the episode which is still uncertain, but the important crux of the story is that Raigad was now surrendered to मुगल। मुगलों ने रायगढ़ को अपने हाथों में ले लिया, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। वहां पर जो मराठों का दफ्तर खाना था, ऑफिस था, उसके सारे रिकॉर्ड उन्होंने जला दिए। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि probably in this fire there is a loss of lot of resources of Maratha history। शिवाजी के काल की कोई बखर हमें नहीं मिलती है, शिवाजी के बारे में मिलती है लेकिन वो उनके बाद में लिखी गई है। उदाहरण के तौर पर सभासद बखर जो कि शिवाजी के मृत्यु के 16 साल बाद लिखी गई है। तो ये जो रायगढ़ के ऊपर एक मुगलों का जो अधिपत्य था वो स्थापित हो गया। द रायगढ़ नाउ केम इन द हैंड्स ऑफ द मुगल। और येसुबाई और उसका जो पुत्र था शिवाजी सेकंड, ये जुल्फिकार खान के स्वाधीन हो गए। जुल्फिकार खान ने उन लोगों को बंदी बना दिया, उनके कुछ सेवक थे, और सबको औरंगजेब के सामने पेश किया। यहां से लेकर 1690 से लेकर 1707 तक, करीब करीब 17 साल तक जो शिवाजी टू जो था वो औरंगजेब की कैद में था, और औरंगजेब ने उसका नाम शिवाजी टू से बदलकर शाहू रखा था। और बाद में वो अपने आप को भी वो शाहू ही बोलता था, क्योंकि औरंगजेब ने भले उसके पिता की हत्या की हो, शाहू के साथ में उसने कोई बहुत जालिमाना व्यवहार नहीं किया। ही ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस। एंड वन ऑफ द सी हाउ हिस्ट्री इज प्रीटी स्ट्रेंज, हिस्ट्री बड़ी स्ट्रेंज है। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या जरूर की थी, शिवाजी को वो एक बंडखोर मानता था, और उसके विपरीत उसका जो पोता है वो बड़ा शरीफ है, वो बड़ा शाहू है, शांत है, इसलिए औरंगजेब ने उसका नाम शाहू रखा, और शाहू नाम से ही वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और औरंगजेब की जो बेटी थी जेबुन्निसा, वो शाहू को अपने बेटे की तरह मानती थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जेबुन्निसा के पिता और मराठों की आपस में लड़ाई थी। शाहू के पिता को औरंगजेब ने बड़ी बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की थी, लेकिन उस संभाजी का पुत्र जेबुन्निसा अपने पुत्र की तरह मानती थी, और उसका उसने अच्छे से ध्यान भी रखा जब तक वो मुगलों के कैद में था। येसुबाई तो और काफी समय तक औरंगजेब के मुगलों के कैद में थी। औरंगजेब की मृत्यु के कई सालों बाद उसको मराठों ने बाद में छुड़ाया। ये जो घटना थी, येसुबाई और शाहू, इनको मुगलों ने पकड़ लिया। राजा राम जो है वो रायगढ़ से निकलकर पहले प्रतापगढ़, फिर विशालगढ़, और अभी जिंजी की तरफ जाने लगा था। तो ये जो घटना थी, इससे भी मराठे काफी, या तो वो हार जाते, अपना आत्मविश्वास खो बैठते, या फिर वो एक साथ हो जाते। तो ये दूसरी प्रतिक्रिया ज्यादा हुई, ये लोग एक साथ आ गए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। रायगढ़ मुगलों को देने के पीछे एक और घटना का जिक्र ये जयसिंह राव पवार करते हैं। ये कहते हैं कि राजा राम रायगढ़ से निकल गया, फिर प्रतापगढ़ और विशालगढ़ के आसपास जो लड़ाई है उसमें भी मुगलों ने उसको हरा दिया। कुछ जगह पर मराठे जीतते थे, लेकिन राजा राम को लगा महाराष्ट्र में रहना अभी तो बहुत रिस्की है, तो ही स्टार्टेड ही जर्नी टुवर्ड्स जिंजी। और जिंजी के पास जब जिंजी की तरफ वो जाने लगे तो मुगल आपको औरंगजेब की
चुपचाप बैठने वाला थोड़ी है कि जो उसको चुपचाप जाने लगे, चुपचाप जाने दे। औरंगजेब ने अपने सरदारों को उसके पीछे भेजा। राजा राम वॉज चेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक जगह पर तो राजा राम, जब एक छोटे से आइलैंड के ऊपर उसने शरण ली थी, उसके ऊपर मुगलों ने बड़ी सेना के साथ में सडनली आक्रमण कर दिया। और राजा राम को वहां से अपनी जान बचाकर किस तरीके से कुछ मराठा सरदारों ने निकाला, लेकिन उसका जो ड्रेस था, उसके जो कपड़े थे, वो किसी और को पहनाए गए, ताकि मुगल इस भ्रम में रहे कि राजा राम को हमने पकड़ लिया। वो आदमी पकड़ा गया और ये न्यूज फैल गई कि राजा राम भी पकड़ा गया है। और येसुबाई के पास में जब ये न्यूज पहुंची रायगढ़ में, रायगढ़ सरेंडर करने से पहले, तो उसको लगा राजा राम भी पकड़ा गया, अभी रायगढ़ भी अगर जीत जाता है तो हमारे साथ में बड़ा दुर्व्यवहार होगा, तो इसलिए उसने रायगढ़ को भी सरेंडर कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि राजा राम तो असल में पकड़े नहीं गए हैं, और ये भी, ये येसुबाई और शाहू जो थे, उन्होंने औरंगजेब के सामने थोड़ी डिप्लोमेसी की। उसने कहा कि राजा राम तो अपनी पत्नियों के साथ में निकल गया और हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया, अभी आप ही हम हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमें बचाइए। और येसुबाई और शाहू जो थे, वो हमेशा यही कहते थे कि राजा राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, वगैरह वगैरह। और मराठों में फूट डालने के लिए औरंगजेब ने भी शाहू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने ये कहा कि मराठों का जो असल में राजा है वो तो मेरे कैद में है, मराठों का राज्य अभी नहीं रहा है, राजा राम तो रिबेल है, राजा राम बंडखोर है, वगैरह वगैरह। वेल, लेकिन इसका मराठों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। मराठे दे रिमेन यूनाइटेड बाय एंड लार्ज, एंड दे कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द मुगल। अब देखते हैं इस लड़ाई की अलग अलग जो कड़ियां थी। अभी लड़ाइयां दो थिएटर में चलने लगी। एक तो महाराष्ट्र में मुगल और मराठों की लड़ाइयां चल रही थी, जिसका नेतृत्व हुकूमत पन्ना रामचंद्र पंत अमात्य करते थे। और एक लड़ाई वहां दक्षिण में जिंजी में शुरू हो गई, जिसको कि राजा राम को पकड़ने के लिए मुगल सेना भेजी गई। तो ये जो मराठों को जो एक बहुत बड़ा शॉक लगा था, संभाजी को पकड़ना मुगलों द्वारा, उसकी मृत्यु, फिर रायगढ़ का हाथ से जाना, राजा राम को यहाँ से निकलना, तो ये मराठे काफी स्कैटर्ड हो गए थे। तो उनको दोबारा एक साथ लाने में बहुत महत्वपूर्ण काम अगर किसने किया है, तो वो किया है रामचंद्र पंत अमात्य ने, हुकूमत पाना जिसको टाइटल दिया गया था। And he was a person of exceptional talent. He had a capacity to organize and understand the talent. He was not a good soldier. उसने लड़ाई नहीं लड़ी, but he was a very clever administrator. और एक होता है ना, किसी किसी लोगों में कैपेसिटी होती है कि people listen to them. So he had that capacity that generally people obeyed his command. And सो एक्सेसिव वॉर का जो थिएटर फैला हुआ था महाराष्ट्र टू कर्नाटका, उसको वो विशालगढ़ से कंट्रोल करते थे, नेतृत्व करते थे। एंड ही वाज असिस्टेड बाय अदर इंपॉर्टेंट पीपल लाइक परशुराम तिम्बक प्रतिनिधि, शंकर जी नारायण सचिव, संताजी, धनाजी। सो दीज वर द पीपल हु रियली असिस्टेड हिम इन हिज वर्क। सो महाराष्ट्र के जो फोर्ट थे, शिवाजी का जो मेन होमलैंड था, वहां के किले की रक्षा करने की जिम्मेदारी परशुराम त्रिम्बक प्रतिनिधि और शंकर जी नारायण सचिव को दी गई। और संताजी और धनाजी को कहा गया कि आप कैवेलरी लेकर आप मार्च करते रहिए महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, एंड यू अटैक द मुगल फोर्सेस वेर एवर इट इज पॉसिबल फॉर यू। मुगल के पास में कोई सोर्सेस ना रहे, उनको वीक करने की कोशिश आप कीजिए। एंड दिस पीपल संताजी एंड धनाजी, दे वेर मूविंग एक्सटेंसिवली ओवर अ वास्ट टेरिटरी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड फाइटिंग वॉर अगेंस्ट द मुगल वेर एवर दे कैन बी। नाउ let us now turn to what happened with Rajaram. Rajaram, he went to Pannala first from Raigad. Pannala में भी उसकी condition difficult थी, and then from Pannala he started his march towards Jinji. He left Pannala in 1689, and then from the places like Supa, Sampgao, Kopal, Vellore, and then finally he reaches to Jinji. So at he reached to Vellore, and at Vellore he stayed there for a month, and after that he went to Jinji on and reached there on 15 November 1689. Here you see he was opposed by his stepsister. संभाजी की जो बहन थी अंबिकाबाई, she was married to Harji Raje Mahadik, and Harji Raje Mahadik was one of the Maratha noble who had worked for Shivaji and later on for Sambhaji in Karnataka. But he died later on. But his sister
Ambika Bai, she wanted to remain independent, did not wanted to work under Rajaram, and Jinji was under her control. When Rajaram asked her that you should hand over me Jinji, I am Chhatrapati now, she refused and she prepared for war against Rajaram. She marched with soldiers against Rajaram, but then some of her own people, they convinced her that it is not right for you. Rajaram is having support of most of the Maratha nobility, and you are a woman, you are a lady. Probably people will not support you that much. And once Shivaji's own son is alive, why they will support Shivaji's daughter? So it's better you withdraw, let him rule over, and that is what she finally listened to. So that war did not take place between sisters and brother. Of course, they were half sister, half brother, सौतेली भाई बहन थे, उनमें लड़ाई नहीं हुई और जिंजी राजाराम के हाथ में आ गया. एंड जब वो मार्च कर रहे थे, व्हेन ही वाज मार्चिंग टुवर्ड्स, व्हेन जब राजाराम वाज मार्चिंग टुवर्ड्स Jinji from Maharashtra, his convoy was protected by these two capable commanders, Santaji and Dhanaji. They used to go ahead and go move up and back, move forward and backward with their cavalry forces, so that Rajaram is protected from the Mughal attack. So the description of this journey, very very daring journey, was is given by Keshav Pandit. Keshav Pandit, he accompanied Rajaram from his journey from Maharashtra to Karnataka, and he wrote a book called Rajaram Charita. Then Rajaram, he reached Jinji, and at Jinji he was joined by his other ministers, and he established his court there, Ashtapradhan Mandal, and in that Ashtapradhan Mandal he created a new post of Pratinidhi, and Prahlad Niraji was appointed as Pratinidhi. So you see, here is Maharashtra Pannala Fort, and here it goes Zinzi up to here. So if you travel straight by road also, it will take more than 20 hours. So it's far long journey, and this is the straight road I have just drawn here from Google Map. But we are not sure. Probably Rajaram will not go straight, and as the historical record comes to us, he has not gone straight from here to Zinzi, because that will be obvious. Mughal will chase him, but he went in another direction first, and then he changed his route, then he crossed the river, and then finally, slowly, after a long journey, he reaches to Zinzi. वेल, जिंजी में पहुंचने के बाद में वहां पर जो छोटे छोटे हिंदू पालेगार राजा थे, जो पालेगार किंग हुआ करते थे, ये बहुत पहले विजयनगर साम्राज्य के जमींदार हुआ करते थे. विजयनगर साम्राज्य जब नष्ट हो गया, देन दे बिकेम इंडिपेंडेंट. उनको आदिल शाह ने बाद में हराया था. इफ यू रिमेम्बर, शाहजी, शिवाजी फादर, ऑन द बिहाफ ऑफ आदिल शाह, ही fought war against पालेगार and made them to surrender. लेकिन अपने हिंदू राजा एक है, और उसको जो इस्लाम धर्म को राज्य, इस्लाम धर्म का राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता है, ऐसा जो औरंगजेब है, उसके खिलाफ वो लड़ रहा है. इस बात से लेकर पालेगार लोगों को बड़ा उत्साह लगता था, एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग राजाराम, दे स्टार्टेड हेल्पिंग हिम विथ मनी. तंजावुर के जो शाहजी भोसले थे, जो कि भोसले वंश के ही थे, उन्होंने भी राजाराम की मदद की. एंड इट्स नॉट ओनली हिंदूज, even some of the Muslim ruler of that surrounding area, they also felt that Rajaram is wrong. Rajaram के साथ में अन्याय किया जा रहा है, and they also started supporting Rajaram. When Rajaram was escaping from Maharashtra, what Aurangzeb was doing, let us try to understand that. So this escape of Rajaram, it upsets Aurangzeb's plan. Now, he was calculating that कि अभी तो आदिल शाही और कुतुब शाही खत्म हो गई, छत्रपति संभाजी को मैंने मार डाला, राजाराम को तो उसको पकड़ना और उसको जेल में डालना या उसको मार डालना लड़ाई में, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी. बट राजाराम का, when he came to know that Rajaram has really escaped from Maharashtra, that has unsettled his plan. और देखिए, मुगलों को ये अंदाजा जरूर था कि राजाराम will try to escape. Before his escape, Mughal have tried to protect, try to prevent him escaping from Maharashtra, but somehow he could manage to reach Jinji. Now लड़ाई का जो क्षेत्र था वो काफी बढ़ा. The theater of war has extended too much, and the emperor has to now move. He thought, okay, no, not a problem. If he has escaped, I will somehow try to manage. And then from Maharashtra, now Aurangzeb goes to Bijapur and then to Gargade, because he thought, now, I'll from Bijapur, I will manage the war and that was fought against Marathas in Maharashtra. Also, I will manage expedition against Rajaram at Jinji. And he stayed for 3 years at Bijapur.
Now, as Aurangzeb was away from Maharashtra and was stationed at Bijapur in Karnataka, the Marathas in Maharashtra, they started becoming stronger. There was more and more pressure on the Mughal. The Marathas, they started attacking Mughal camps more. And Aurangzeb has to again, after 3 years, move back to Maharashtra, and he encamped at the place called Brahmapuri. He renamed that place as now Islampur, and that place is near Pandharpur. And he stayed at Pandharpur, this Islampur, for next 4 years, 1695 to 1699. And yeah, by the end of 1699, Rajaram came back to Maharashtra, because in 1699, Jinji is now captured by Mughal after a long war, after a long siege. You know, Aurangzeb was determined that one after another I will conquer Maratha fort, and the Marathas will be left with no option but to surrender to me. So as he was determined, the Marathas were also determined to fight against him. नाउ ये जो इतना लंबा जो कैंपिंग था, इतना लंबा जो लड़ाई चल रही थी, सी दे केम टू महाराष्ट्र, द मुगल केम टू महाराष्ट्र इन 1681. नाउ अभी 1700 हो रहा है. इस बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, इसके बारे में, दक्षिण में जो लड़ाई हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे. महाराष्ट्र की सिचुएशन, मुगलों की सिचुएशन, औरंगजेब की सिचुएशन क्या होते जा रही थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ. तो इस लंबी कैंपिंग के बाद में मुगल सोल्जर और मुगल कमांडर जो थे, दे वर वेरी टायर्ड, दे वांटेड टू गो बैक टू दिल्ली. यू नो, इतने सालों से वो लोग बाहर थे कि उनके कई बच्चों ने दिल्ली देखी ही नहीं थी. अपने फैमिली के साथ में लेके आए थे, उनके कई बच्चों का जन्म कैंप में हो गया, कई बच्चे वहाँ छोटे से बड़े हो गए. So they wanted, now they were looking for, a peace. दे अर्ज द एम्परर, एम्परर को जहां पर भी संभव हो उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप मराठों के साथ में शांति कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, एंड लेट अस गो बैक टू दिल्ली, नाउ वी हैड इनफ ऑफ वॉरफेयर. बट औरंगजेब वॉज डिटरमाइंड. सातारा, जो कि मराठों का एक इंपॉर्टेंट शहर था, उसको जीता गया 1700 में. रिवर, नदी, मान नाम की एक नदी है, उसके पास में औरंगजेब ने जब अपना अपना कैंप लगाया था खावसपुर में. तो महाराष्ट्र की जो नदी है वैसे तो छोटी दिखती है, लेकिन एक बार, कई बार उसमें फ्लड सडनली आ जाता है. तो वैसे ही वहां पर हुआ, इस मान नदी में सडनली फ्लड आ गया, और वो जो मुगलों का जो कैंप था उसमें पूरा पानी भर गया. और जब जब लोगों का शोर शराबा होने लगा, तो औरंगजेब को लगा कि शायद मराठों ने अटैक कर दिया है. एंड देन ही गेट अप सडनली फ्रॉम हिज बेड, एंड देन ही, एज ही स्टार्टेड रनिंग, ही फेल. वो गिर गए, और उनको इंजरी हो गई उनके पैर में, और उसके बाद में वो हमेशा लंगड़ के चलते थे. तो औरंगजेब की भी जो तबीयत है वो अभी धीरे धीरे खराब होने लगी थी. पुणे के पास में फिर उन्होंने अपना काम कैंप लगाया. ही रीनेम पुणे एज मुहैयाबाद, पुणे का भी नाम उसने बदल दिया. फिर 1703 में सिंहगढ़ मुगलों ने कैप्चर कर लिया. एंड लेकिन उसके, ये जो सारे मराठों के किले थे, मराठों ने एक अलग स्ट्रेटेजी इस समय अपनाई थी. किले को वो जितना हो सके लड़ाई प्रोलॉन्ग करते जाते थे, क्योंकि किले को जीतना बड़ा कठिन होता था. और जब मुगल घेर कर बहुत समय बैठते थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब ऊपर भी मराठों को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, उनका सारा सामान जब खत्म होने लगा था, तब वो निगोशिएट करते थे और किले किले को हैंड ओवर करते थे और वहां से निकल जाते थे. मुगल उस किले को लेते थे, वहां पर कुछ अरेंजमेंट करते थे, और फिर वो दूसरे किले के ऊपर अपनी सेना भेजते थे. तो पहले किले के ऊपर की सेना मुगलों की कम होती थी, और मराठे दोबारा से उसके ऊपर आक्रमण करके दोबारा उसको जीत लेते थे. तो 1703 तक मुगलों ने काफी किले जीते, लेकिन मराठे धीरे धीरे करके एक एक किले दोबारा वापस लेने लगे थे. तो 1705 तक वो सारे के सारे वो किले जो मुगलों ने जीते थे मराठों से, वो सारे किले दोबारा मराठों ने जीत लिए. और मुगलों को एक एक किला जीतना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि किले के पास तक ये इतनी हेवी कैनन, बड़ी बड़ी तोहफे लेके जाना, वॉर मटेरियल लेके जाना, आदमी को लेके जाना, फिर उस किले को जीतने के बाद में वो सारा साजो सामान दूसरे किले पे, दूसरे किले के ऊपर आक्रमण के ले जाना. ये जो पहाड़ी इलाका था, इसमें मूवमेंट करना, बड़ी बड़ी तोहफे घुमाना, हाथी घोड़े, ये सबको घुमाना बड़ा कठिन होता था. तो मुगल काफी परेशान हो गए थे मराठों के खिलाफ जो इतनी लड़ाई चल रही थी. तो ये तो महाराष्ट्र की स्थिति होने लगी थी, मुगलों की स्थिति होने लगी थी. अभी जिंजी में क्या हो रहा था, उस तरफ क्या हो रहा था, उसकी उसके बाद उसकी चर्चा हम करते हैं. जुल्फिकार खान ने जो है 1890 में जैसे ही राजा राम जिंजी पहुंच गए, उसके साथ साथ ही मुगल मुगल जुल्फिकार खान, जिसने रायगढ़ को जीता था और जो काफी कैपेबल माना जाता था, जुल्फिकार खान, उसको औरंगजेब ने भेजा कि आप जो है जिंजी को घेर लीजिए, राजा राम को किसी भी तरह से पकड़ लीजिए. जिंजी को जुल्फिकार खान ने घेर लिया. और ये जो जिंजी का जो
घेराबंदी थी, जिंजी का जो सीज था, इट कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 8 years। 8 साल तक जो जुल्फिकार खान था वो राजाराम को जीत नहीं पाए थे। और इस जीत नहीं जीतने के पीछे क्या कारण थे ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जिंजी में जाना राजाराम का और मुगलों का उसको घेरना, फिर औरंगजेब सेना भी भेजता था, इसमें इस लड़ाई में संताजी एंड धनाजी इन दोनों ने काफी दे हैव शोन एन एक्सेप्शनल ब्रेवरी। संताजी, एज आई सेड, ही वाज एन मास्टर ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स, रैपिड मार्चेस, बहुत क्विकली वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी सेना ले जाता था, तुरंत सिचुएशन को देख के अपने प्लानिंग में चेंज करता था, एंड ही यूज्ड टू सरप्राइज हिज एनिमी। एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, कोई भी डिसिप्लिन अगर तोड़ता था तो उसको बड़ी बेरहमी से उसको मौत देता था, हाथी के पैर के नीचे कुचल देता था। काफी खान ने ये बात लिखी है अपनी हिस्ट्री में। एंड बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस ही बिकेम वेरी एरोगेंट एंड रूड ऑल्सो, काफी उसमें घमंड आ गया था। इसके विपरीत जो दूसरे सेनापति थे धनाजी जाधव, वो भी काफी ब्रेव थे, लेकिन वो उनका वो स्वभाव से बहुत शांत स्वभाव के थे। वो बहुत अच्छे से बात करते थे सबसे, उनका माइल्ड स्वभाव था। ये दोनों जो सेनापति थे, इन्होंने मुगलों के कैंप में अटैक करके, आक्रमण करके, लड़ाई करके मुगलों के मुगल सिपाहियों के मन में काफी दहशत फैला दी थी। ये भी काफी खान खुद लिखता है कि जब मुगलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे नदी पे, तो मुगल उसको कहते थे कि क्या हुआ, तुमने धनाजी को देख लिया क्या पानी में, इतने डर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो। इस तरीके की बातें हैं which are indicative of their bravery and the fear they created in the mind of the मुगल सोल्जर्स। जुल्फिकार खान जिंजी के किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए औरंगजेब ने सरजा खान नाम का एक सरदार महाराष्ट्र से भेजा, उसके साथ में सेना भेजी। लेकिन सरजा खान को जुल्फिकार खान तक संताजी और धनाजी ने पहुंचने ही नहीं दिया। दे वेर दे डिफीटेड दिस सरजा खान इन बिटवीन। अभी मराठों की धीरे धीरे कैसे सिचुएशन मराठों के लिए अच्छी होती चली गई, इस बात का अंदाजा हमें इस लेटर से आता है। ये लेटर राजाराम ने हनुमंतराव घोरपड़े को लिखा था। हनुमंतराव घोरपड़े ये मुगलों के सेना में थे, मुगलों के सेनापति थे, औरंगजेब के साथ में मिल चुके थे। मुगल जब महाराष्ट्र में आए, औरंगजेब जब आए, तो कई मराठा उनके साथ में ज्वाइन हो गए थे। लेकिन ये जो सारी घटनाएं हुई एक के बाद एक, संभाजी का पकड़ा जाना, उसको इतनी बेरहमी से औरंगजेब ने मृत्यु दिया, फिर राजाराम का रायगढ़ से निकलकर जिंजी तक जाना, उसको जो पकड़ने की कोशिश की मुगलों ने, और येसुबाई जो कि काफी रिस्पेक्टेबल लेडी थी, उसको मुगलों ने पकड़ लिया, संभाजी के पुत्र को पकड़ लिया। इस बात से जो मराठा सरदार औरंगजेब के सेना में भी थे, उनके भी मन में ये लगने लगा कि ये तो हम तो केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी मराठा सरदार जो है, जो राजाराम की सेवा कर रहे हैं, वो तो किसी ऊंचे ध्येय को लेके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी मुगलों की नौकरी छोड़कर अपने मराठा भाइयों के साथ में हाथ मिला ले और हम लोग भी लड़ाई करें। तो उस बात से प्रेरित होकर भी कई जो मराठा औरंगजेब की सेना में थे, उन्होंने औरंगजेब की नौकरी छोड़ दी और धीरे धीरे राजाराम के साथ में उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया और राजाराम के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो ये लेटर से हमें अंदाजा आता है कि किस तरीके का आत्मविश्वास मराठों में आने लगा था। तो इस लेटर में राजाराम हनुमंतराव घोरपड़े को लिखते हैं कि आपको क्या करना है भविष्य में। सबसे पहले तो आपको मुगलों की नौकरी छोड़नी है, एंड यू मस्ट ज्वाइन द किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द महाराष्ट्र धर्म। देखिए, महाराष्ट्र धर्म की संकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, कि हाउ इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ pride for the religion Hinduism as well as pride for being Marathi, and in order to protect that pride, protect that honor of Maharashtra dharma, you must leave the service of Aurangzeb and join hands with the Marathas। फिर वो कहते हैं कि आप अगर छोड़ के आ जाते हैं, बिकॉज हनुमंतराव घोरपड़े वाज अ वेरी वेल नोन मराठा नोबल इन द सर्विस ऑफ औरंगजेब। वो कहते हैं कि आपको 25 लाख रुपए धीरे धीरे दिए जाएंगे, 25 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 3 लाख आपको तब मिलेंगे जब आप रायगढ़ जिला, बीजापुर का जिला, भागानगर जो कि हैदराबाद में है, और औरंगाबाद, ये चारों के चारों जीत, तीन चार, ये 5 जिले, चार है ना, हाँ, 4 जिले अगर आप जीत लेते हैं तो आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी देखिए, रायगढ़ महाराष्ट्र में है जिसके ऊपर मुगलों का अधिकार था, बीजापुर जो कि दक्षिण में है,
भागानगर जो कि हैदराबाद के पास में है, और औरंगाबाद जो कि मुगलों का इंपॉर्टेंट सिटी है। तो इसको जीतने के लिए राजाराम जब किसी मराठा सेनापति को कह रहे, इसका मतलब उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ने लगा था। 3 लाख खून आपको कब दिए जाएंगे, जब आप दिल्ली जीत लेंगे। तो मराठे राजाराम के समय ही दिल्ली जीतने का ख्वाब देखने लगे थे, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ देयर ग्रोइंग कॉन्फिडेंस। तो जैसे पहले बता चुका हूं मैं, कई सारे मराठा सरदार अभी मुगलों की नौकरी छोड़कर राजाराम के साथ में ज्वाइन होने लगे। जिंजी के आसपास के लोगों ने, पालेगार ने और कई लोगों ने राजाराम की काफी मदद की, और काफी पैसा वो जिंजी से महाराष्ट्र भेजने लगे। अ, उसके बाद में औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के कारण उसने कई लोगों के मन दुखाए थे, राजपूतों के भी, और वही काम उन्होंने मराठों के साथ में भी किया। उसने कुछ मराठा नोबल जो थे वो मुगलों की सेना में चले गए थे। लेकिन औरंगजेब को ये लगता था कि जब तक ये आदमी हिंदू है तब तक ये लॉयल नहीं है, तब तक ये फेथफुल नहीं है। क्यों ना इसको मुस्लिम बना दिया जाए, अगर इसको मुस्लिम बना दिया जाए तो ये फेथफुल रहेगा। तो ये औरंगजेब ने जब कुछ लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिश की, तो उसके कारण भी मराठा नोबल जो है वो नाराज हो गए। इवन राजाराम और सॉरी शाहू जो कि उसकी कैद में था, उसको भी उसने मुसलमान बनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरीके से जेबुनिसा के माध्यम से वो टाला गया, और उसके बदले में दो मराठा नोबल जो है वो मुसलमान हो गए। अभी औरंगजेब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए मराठों के खिलाफ। रामचंद्र पंतामात्य जो कि महाराष्ट्र में थे, उन्होंने काफी मराठों को ऑर्गेनाइज किया, और जो लोग भी मराठों के खिलाफ जाकर मुगलों की मदद करते थे, उनके साथ में वो बहुत कहते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते थे। इवन उनके बच्चे और पत्नी को भी बंदी बना लिया जाता था, जो कि मराठे पहले नहीं करते थे। लेकिन दिस वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो रामचंद्र पंत आमात्य सेड कि until unless we do that, मराठास, सम ऑफ द मराठास दे विल कंटिन्यू टू हेल्प द मुगल। जैसे कि मैंने बताया, पिसाड़ के जो देशमुख थे, जिन्होंने रायगढ़ को जीतने में मुगलों की मदद की थी, उसको काफी प्रोसिक्यूट किया गया। येसुबाई जो कि अपेरेंटली तो कहते थे कि राजा राम ने हमें छोड़ दिया और चले गए। अपेरेंटली तो येसुबाई और येसु कहते थे कि औरंगजेब आप ही हमारे सब कुछ हो, अभी हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन वो येसुबाई भी मुगलों के कैंप की जानकारी राजा राम तक या मराठों तक पहुंचाती थी। जिंजी को जो जुल्फिकार खान ने अपना घेरा कर रखा था, जो सीज वाज देयर, जुल्फिकार खान को लगा कि आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है जो काफी, इट इज वेरी होस्टाइल टू मुगल, दे आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट विद द मुगल। फिर संताजी और धनाजी बीच बीच में आक्रमण करके जुल्फिकार खान को हराश करते थे, उसको काफी परेशान करते थे। जुल्फिकार खान को उसको जो सप्लाई मिलनी चाहिए, खाना जानवरों के लिए फोडर, वो भी नहीं मिलता था, और जिंजी से निकलकर फिर उसको वंदीवाश तक अपनी सेना ले जानी पड़ी। ही विड्रॉ टू वंदीवाश। हाँ। फिर एक अली मर्दान खान नाम का एक मुगल सेनापति था कांची में। एंड ये जब संताजी जुल्फिकार खान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, उस समय अली मर्दान खान ने संताजी को रोकने की कोशिश की, और वहां पर देयर वाज एन हॉटली contested बैटल वाज फॉट बिटवीन अली मर्दान खान एंड संताजी, एंड इन दैट अली मर्दान खान वाज डिफीटेड बाय संताजी। ही वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज टेकन टू जिंजी। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि दैट सीज which continued for 8 years, जब सीज था, तो हाउ कुड संताजी गो एंड कम फ्रॉम जिंजी, और हाउ कुड राजा राम इवन कम एंड गो? सो यू नो दैट सीज वाज नॉट वेरी effective siege. In fact Zulfikar Khan was attacked by the Marathas and he has to withdraw। जब भी उसको थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव होती थी, फिर दोबारा वो जिंजी की घेराबंदी करने की कोशिश करता था, फिर मराठे आक्रमण करते थे। इवन ये भी कहा जाता है कि देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुल्फिकार खान एंड राजा राम। औरंगजेब की तबीयत खराब होने लगी थी, उसकी काफी उम्र भी होने लगी थी, तब जुल्फिकार खान ने ये सोचा था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, आई विल बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर इन साउथ। और राजाराम के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम दोनों भी इंडिपेंडेंट रूलर हो जाएंगे, हैदराबाद का जो एरिया है आप मुझे दे देना, और महाराष्ट्र का सारा एरिया जो है वो आप वहां के आप राजा बन जाना। ये भी बातें हुई थी, इसलिए दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते थे। इवन हम लोग देखते हैं कि राजा राम वाज आल्सो बिट लीनियंट टुवर्ड्स जुल्फिकार खान, एंड जुल्फिकार खान वाज आल्सो बिट लीनियंट। जब लास्ट में 1800
1699 या 1700 में जब जिंजी को जीत लिया गया, मुगलों ने जीता, तो जीतने से पहले उसने ही अलाउड Rajaram's wives to go, and then later on he conquered the fort. So there seems to be certain understanding. ये एक this could be a matter of investigation, but एक बात जरूर है, आपको इस समय ध्यान में रखनी ये है कि जिंजी का जो siege था वो that was not very effective. The Maratha commander could go and come. वेल, नाउ ये जो अली मर्दान खान जिसको जिंजी में लेके गया संताजी, उसको छोड़ने के लिए मुगलों ने काफी पैसे दिए, बिकॉज राजा राम एंड संताजी सेड कि until and unless you pay lot of money I will not release you, and lot of money was paid to have him released. Then Ismail Khan Maka, who was another Mughal commander who was sent to Deccan to help Zulfikar Khan, was defeated by Dhanaji in 1693 January. Now Zulfikar Khan, his condition became very difficult. He appealed to Aurangzeb, please send reinforcement. जल्दी से जल्दी सेना भेजिए, यहाँ मुगलों की कंडीशन खराब हो रही है. तो प्रिंस कामबख्श एंड उसका जो मिनिस्टर था असद खान वाज इनफैक्ट फादर ऑफ जुल्फिकार खान, उनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई. लेकिन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, क्योंकि ये जो प्रिंस कामबख्श था ये बहुत केपेबल नहीं था, और असद खान और जुल्फिकार खान, उसने तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि कामबख्श ने ही मराठों के साथ में हाथ मिला रखा है, और कामबख्श को इन दोनों ने अरेस्ट कर लिया, औरंगजेब के पास में ये न्यूज भेज दी. फिर उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु की भी खबर उठी कि औरंगजेब हैज डाइड. जब औरंगजेब हैज डाइड, ये इतने दूर, औरंगजेब महाराष्ट्र में था, बीजापुर में था, महाराष्ट्र कर्नाटका में, एंड जिंजी इज फार अवे. तो वहां जुल्फिकार खान ही लॉस्ट करेज, एंड दिस वाज taken advantage by the Marathas. They harass him, they attack his forces. So these two Khan, Zulfikar Khan and his father, along with Kambaksh, they have to withdraw to Andiwash, and they have to in fact pay a lot of money to Rajaram for withdrawing, for allowing them to withdraw. Otherwise, Marathas could have captured them or killed them. So, as Rajaram has allowed Zulfikar Khan to withdraw to Andiwash, this has created rupture between Rajaram and Santaji. Santaji said, ki, why did you allow them to go? We could have captured them, and that we could have released them after they paid a lot of money. So, he was quite upset with this behavior of Rajaram, and he even accused ki, I am fighting, but it is your ministers who are taking a lot of bribe and allowing our enemy to go back to their safety. And he withdrew from Jinji along with his troops. In fact, Rajaram, even though he was Chhatrapati, he visited and pacified Rajaram. So there was an indication that probably there was some secret agreement between Rajaram and Zulfikar Khan, क्योंकि बाद में हम लोग देखते हैं जब जुल्फिकार खान जिंजी को जीतता है, तो he allowed Rajaram's family to first go and did not harm them anyway. जुल्फिकार खान जिंजी ले सकता था, लेकिन वो जानबूझ के शायद डिले कर रहा था. जैसे कि मैंने बताया, शायद दे हैड अ प्लान कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, औरंगजेब काफी बूढ़ा हो चुका था, मृत्यु हो जाएंगी, जुल्फिकार खान विल हैव अ चांस टू बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर इन साउथ. गोलकोंडा जुल्फिकार खान को दिया जाएगा और बीजापुर जो है राजाराम को दिया जाएगा, ये शायद उनमें एग्रीमेंट था. Let us go to the next. Now, एक जो नेक्स्ट एपिसोड है, दैट इज डिफीट ऑफ कासिम खान. औरंगजेब एक के बाद एक सरदारों को अपने सरदारों को दक्षिण में भेजता था राजाराम के खिलाफ लड़ने के लिए. कासिम खान वाज वेरी कैपेबल ऑफिसर, मुगल नोबिलिटी में उसका काफी नाम था. तो संताजी और धनाजी जुल्फिकार खान को आक्रमण अटैक करते थे, और जुल्फिकार खान वाज नॉट एबल टू टेक जिंजी. इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए औरंगजेब नाउ डिसाइडेड दैट आई विल सेंड कासिम खान, and he instructed Zulfikar Khan ki, you press the siege and Qasim Khan will prevent Santaji and Dhanaji from attacking you. And so he had this plan ki, at the same time Santaji and Dhanaji will be defeated by Qasim Khan, and at the same time Zulfikar Khan will capture Rajaram and Jinji. So ये जो सारा प्लानिंग मुगलों का चल रहा था, उसी समय विशालगढ़ में एक मराठा नोबेलिटी की रामचंद्र पंत आमात्य ने मीटिंग बुलाई 1695 में विशालगढ़ में, एंड देयर दे डिस्कस ऑल द स्ट्रेटेजी, एंड what was the strategy, what were the further development in this war against the Mughal, that we will take up in the next class. All right, so we'll stop here for time being, and today we have covered
how after the death of Sambhaji, though there was panic among the Marathas, it was Isubai who came. She called the meeting. Rajaram was released from prison. He was made Chhatrapati. Then he escapes from Maharashtra to Jinji. In Maharashtra, now the battle is being generally marshaled and commanded and looked after by Ramchandra Panta Amatya, Hukumat Pana. And in south at Jinji, Rajaram, he again established his court. And Santaji and Dhanaji, they kept moving from north, Maharashtra to Karnataka and kept on harassing the Mughals. All right, so we are stopping here for today. ओ मेरा वीडियो ऑफ हो गया था बट कुड यू लिसन टू मी मेरी आवाज आ रही थी Yes, sir. अच्छा अच्छा ओके ओके ओ वीडियो